वेलकम स्टूडेंट्स। आज वेक्टर्स का थर्ड डे है। कल मैंने आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। इसी को लेके हम आगे चलेंगे और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी मैं आज करूंगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के कुछ टिपिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और बहुत सारे क्वेश्चन जब कंप्लीट वेक्टर में करा लूंगा तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट फिर हम एक साथ कराएंगे। पहले हर चैप्टर के साथ आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट याद रहे, हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कराएंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो या वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, फॉर्मूला हमारे पास एक ही आता है, आर स्क्वायर आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा एंड दिस इज द अंडर रूट। tan अल्फा अबाउट द डायरेक्शन P sin थीटा एंड Q प्लस P cos थीटा। इसमें हम स्पेशल केसेस ले रहे हैं। स्पेशल केसेस क्या? स्पेशल केसेस में अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स P एंड वेक्टर Q सेम डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0, तो इस केस में R क्या होगा और एंगल कितना होगा? जरा देखिए डायरेक्शन। इन दिस केस R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 and this is the root. Then finally R equal to P square plus Q square plus cos 0 1 होता है तो 2pq and 1 and this is the here like this. So finally R equal to what we get here? P square plus Q square plus 2pq and that is P plus Q whole square and this is under root, so R is equal to P plus Q means if this is the P and this is the Q then this is the resultant. दोनों see this is resultant. From the picture it is very clear, then R is in the direction of P. If the P is the P and Q, so angle between then tan alpha here. Then we are going to find out tan alpha. We can use your common sense. Then you can write that here alpha is also 0 degree. But here use this formula tan alpha then P sin 0 and P Q plus P cos 0, तो tan alpha equal to definitely P sin 0 means 0 upon here that is the Q plus P cos 0, very clear. तो tan alpha is equal to 0 and alpha is equal to also 0 degree means that angle between R and P is 0 degree. तो हम स्पेशल केस में निकाल के देखें, अगर हमारे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। सिंपली दिस फॉर्मूला यूज, मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। 90 डिग्री के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर 90 डिग्री theta is equal to 90 degree. Very clear. This is the P
दिस इज द P एंड हियर दिस इज द Q। जनरली यहाँ पे हमने Q कर रखा था। Here theta is equal to 90 degree. In this case, this is the result. This is the R. So now use this formula. R equal to P square plus Q square plus 2PQ and cos 90 root. You know that cos 90 कितना होता है? Cos 90 is equal to 0. तो ये फैक्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो R कितना हो जाएगा? P square plus Q square. Directly use this formula for the 90 degree. Directly use this formula for the 90 degree, and for tan alpha see this P sin theta means P sin 90 and Q plus P cos 90. Tan alpha, dear students, P sin 90 1, so this is the P. Why? Because sin 90 is 1, sin 91, so this is the P into 1, that is the P, and here Q. Cos 90 0, so P into 0 0. Then finally here for the tan alpha only use P upon Q. If the case is the 90, if the theta is 90 degree, then R is equal to only P square plus Q square under root, and tan alpha is equal to P by Q for 90 degree. Now see for the 180 degree. Now theta is equal to 180 degree. Means suppose that this is the P and this is the Q, and then angle is here 180 degree. So here R equal to P square plus Q square plus 2PQ cos 180, and this is like this. Then P square plus Q square plus 2PQ and cos 180 minus 1, and then finally R equal to, I am going fast because it is a neat class, P square plus Q square minus 2PQ under root, and so R equal to कितना हो जाएगा? P square P minus Q whole square and under root. So R is equal to P minus Q. So when vectors are in opposite direction, then only use P minus Q. Here only P minus Q. R is equal to P minus Q you have to do. So the vector is in the opposite direction. Now one thing, a student, try to understand. 3 केसेस आपको हम बता रहे हैं, और जो डायरेक्ट अगर एग्जाम में आता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर जरूरत पड़े न्यूमेरिकल्स यूज करने में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। थ्री इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये 3 हम इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। यू हैव 2 वेक्टर्स, हमारे पास P है और दोनों वेक्टर बराबर है, दोनों वेक्टर बराबर है, और थीटा जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, रिजल्टेंट P रूट 2 इक्वल टू Q रूट 2। अगर 2 वेक्टर आपस में इक्वल है और दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट किसी भी एक के रूट 2 टाइम्स होता है, किसी भी एक के रूट 2 टाइम्स हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर 2 वेक्टर इक्वल है
दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आर पी रूट 2 या क्यू रूट 2, एक डायग्राम से मैं आपको समझा दूं। अगर ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर है, तो बिकॉज यहाँ पे पी और क्यू क्या है हमारा मैग्नीट्यूड्स है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड ये जो लेंथ होगा रूट 2p या रूट 2q। अगर ये हमारा p वेक्टर q वेक्टर दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का और p रूट 2 होगा या q रूट 2 होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला में r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा में जब वैल्यू पुट करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन आपको डीट में तक टाइम नहीं मिलेगा निकालने के लिए, इसलिए माइंड में इसको रखिएगा। सेकेंड, p इक्वल टू q, ये दोनों बराबर है एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, p रूट 3 इक्वल टू q रूट 3। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर दिया हुआ है, अगर सपोज करो कि p आपको दिया है, q दिया है, दोनों बराबर है, तो r कितना होगा, r इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू p रूट 3 इक्वल टू q रूट 3। जो आपका जो वेक्टर है दोनों अगर बराबर है तो रिजल्टेंट रूट 3 टाइम्स p और रूट 3 टाइम्स q होगा। ये आपको ध्यान में रखना। एक थर्ड यहां डायग्राम भी बना दें हम आपको। पहले ये तो टेंगल लॉ से कर दिया हमने, इसको वेक्टर लॉ से कर देते हैं। ये हमारा p है और ये q है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये हमारा रिजल्टेंट एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री इस केस में, एंड दिस इज द r। अब अगर थीटा हमारा अगर 120 डिग्री है, 120 डिग्री और रिजल्टेंट p हमारा दोनों बराबर है, तो r कितना होगा। अब मैं दो में से 3 है ना, तो एक मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। इसी तरह से आप इसको भी सोल्व कीजिएगा, यू गेट दिस एंड यू गेट दिस। r कितना होगा इसमें देखना है। तो देखिए हमने ये वेक्टर बनाया, ये दिस इज p एंड दिस इज q एंड एंगल इज 120 डिग्री। तो नाउ दिस इज द रिजल्टेंट और इसको मिला दीजिए यहां से, एंड हियर अब यहां पे क्या है कि दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द याद कीजिए मैंने बताया था ड्रॉन ऑन द सेम पॉइंट, ड्रॉन ऑन द सेम पॉइंट। इसीलिए हमने इस रिजल्टेंट को नहीं लेंगे, हमने गलत ड्रॉ कर दिया था और जानबूझ के मैंने गलत किया था कि आप इसको समझिए। तो P और Q है, तो हमारा रिजल्टेंट ये आ। अब जरा देखिए, हमने दोनों के x मान लिया, जब दोनों बराबर है तब x मान लिया। तो P R इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसको हम स्क्वायर कर देते तो रूट लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने आसानी के लिए इसको स्क्वायर ले रहे हैं। हमने अगर स्क्वायर ले लिया तो फिर हमें रूट की जरूरत, रूट स्क्वायर की जरूरत नहीं है। p को हमने x कहा, x स्क्वायर, ये भी हमारा x है, x स्क्वायर एंड 2 इंटू x इंटू cos 120। ये दोनों जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर एंड cos 120 होता है -1/2। ये हमारा कैंसिल हो गया। फाइनली 2x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस x स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू x। मतलब हमारा जो r है वो p और q के बराबर होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है
120 डिग्री एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रिजल्टेंट और बराबर होगा दोनों फोर्स के अगर थीटा 120 डिग्री है। अगर दोनों फोर्स बराबर हैं, दोनों वेक्टर बराबर हैं P और Q, और दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू द आइदर ऑफ द फोर्स। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब एक सवाल उठता है कि 2 के लिए तो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दिया, अब 3 फोर्स के लिए क्या करेंगे, 4 फोर्स के लिए क्या करेंगे? तो मैं बताता हूं कि 3 फोर्सेज हो या 4 फोर्सेज हो, कितने भी फोर्सेज है, हमें विदाउट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम नहीं कर सकते। हमें फाइनली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज ही करना है। अपने आप में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लॉ है वेक्टर में। अब 3 फोर्सेस की बात करते हैं। Application of law of parallelogram for more than 2 वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर्स से ज्यादा है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? अब जरा देख लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें मिलेगा 3 फोर्सेस, हम 3 वेक्टर ना करके हमने 3 फोर्सेस कर दिया, क्योंकि फोर्स का कंसेप्ट एक माइंड में बड़ी आसानी से आता है। तो 3 फोर्सेस हमने रखा। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहां पे ये 20 न्यूटन फोर्स काम करता है, और इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे 20 न्यूटन फोर्स, ये हमारा 30 न्यूटन फोर्स है, और यहां पे इस पॉइंट पे 10 न्यूटन फोर्स है। अब पॉइंट की अंदर 3 फोर्सेज 30 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए 30 न्यूटन 20 न्यूटन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 30 न्यूटन ये 30 न्यूटन एंड 20 न्यूटन ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम करेंगे 30 एंड -20 इक्वल टू 10 न्यूटन। 30 पॉजिटिव वाई पर है, तो जो रिमेनिंग फोर्स जो 10 न्यूटन है ये हमारा किस पे हो गया, पॉजिटिव वाई पर हो गया। ये दोनों मिलकर 30 न्यूटन 20 न्यूटन, रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। आपको बताया था ना, यहां भी हम 30 के लिए 20 के लिए भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया हमने। आपको बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन है तो बेटा माइनस कर देते हैं, तो हमने माइनस कर दिया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। अब हमने यहां पर लिया 10। नाउ यूज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स F मान लीजिए। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए अब हमें लंबा नहीं जाना है। हम शॉर्ट में बता चुके हैं कि अगर 2 फोर्सेज अगर इक्वल हैं और एंगल 90 डिग्री है तो डायरेक्ट ले लीजिए 10√2 न्यूटन। अभी मैंने बताया था, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, 10√2। अब ये एंगल क्या है, अल्फा। डायरेक्शन मैं ये भी बताया था, इस केस में अगर अल्फा निकालना है तो सीधे करेंगे P/Q। अगर 90 डिग्री है तो हमें नहीं लिखना है P sin थीटा प्लस Q प्लस P cos थीटा, इतना लंबा नहीं करना है, सीधे डालना है 90 डिग्री P/Q शॉर्ट में करना है आपको। तो कितना 10 अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू 10/10, tan अल्फा इक्वल टू 1, और आपको पता होना चाहिए ये 45 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए हमने निकाल लिया। अगर 3 फोर्सेज है तब भी हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे,
इसको धीरे धीरे समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे, उनको आगे चल के फायदा होगा जब हम डीप न्यूमेरिकल्स कराएंगे, कंसेप्ट कराएंगे वेक्टर में। जो बिगिनर्स है उनको यही से समझना है। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, कंटिन्यू रखिए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अगर वर्दी समझते हैं तो आप कीजिए। अब फोर्सेज ले लिया हमने। अभी हम बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल चीजें सिखा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट फ्रेश रहे, आप कॉन्सेप्ट आपको रहे, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं आपको समझ में आ जाए। फोर्सेज 60 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, 40 एंड -20 इक्वल टू 20 न्यूटन प्लस वाई, ये माइनस वाई इज ग्रेटर देन प्लस वाई। इसका मतलब जो रिमेनिंग 20 न्यूटन है वो माइनस वाई पे होगा, ये नीचे की तरफ होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया, दैट इज 20 न्यूटन। ये 40 20 माइनस कर दिया, सिंपल। अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है, ये हमारा 180 डिग्री पे है। तो 40 - 20 क्योंकि ये बड़ा है, ये हम नीचे की तरफ करते हैं। अब 60 - 40 देखिए, ये भी हमारा 20 न्यूटन हो गया, लेकिन ये हमारा 60 बड़ा है। अपोजिट डायरेक्शन में तो 60 - 40 20 हो गया। तो इस केस में ये हमारा हो गया 20। अब हमारा यहां पे ये हमारा सेम 90 डिग्री है। अगर हमारा एफ है तो एफ कितना हो जाएगा, 20√2 न्यूटन। सेम अगर हमें एंगल किससे लेते हैं, एक्स एक्सिस से, दिस इज, यहां भी क्या लेंगे हम, tan अल्फा p/q, मतलब कोई भी एक फोर्स, ये p है, इसको q मान लीजिए। तो दैट इज, दोनों बराबर है ना, दोनों बोथ आर इक्वल। तो tan अल्फा 20/20, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे आप क्वेश्चन करें। अगर आप, ये तो 2D है, अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इन 3D। अब देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब ये 3D फिगर है, थोड़ा सा माइंड को वाइड करके समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट में लेना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि कोई भी एक बॉडी फोर मीटर मूव कर रहा है, 4 मीटर। 4 मीटर के बाद, ठीक है, 4 मीटर के बाद आप ईस्ट में जाने के बाद और सीधे 3 मीटर नॉर्थ में, ये 3 नॉर्थ, हमारा। अब एक सवाल आप पूछेंगे, सर नॉर्थ तो हम ऐसे दिखाते हैं, एक्चुअली नॉर्थ को हम ऐसे दिखाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमारा बोर्ड 2D है, तो हम अगर 3D की बात आती है तो हम अप कैसे दिखाएंगे, तो इस केस में हम इसको नॉर्थ नहीं, हम इसको अप दिखाएंगे। तो एक्चुअली ये हमारे यहाँ पे 90 दिखाने का मतलब हमारी बॉडी सीधे जो है नॉर्थ पे जा रही है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना बेटा, 90 डिग्री। इस केस पे एक्चुअली हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी एक बॉडी अगर मान लो ए है, ए से बी ईस्ट में जाती है और बी से सी नॉर्थ में जा रही है, उसके बाद ऊपर चली गई 5 मीटर ऊपर चली जाती है।
अप, 5 मीटर अप। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। कितना है डिस्प्लेसमेंट? अब जरा देखिए इसको। सबसे पहले हम इसको मिला दिया है और यहां पे 90 डिग्री है। अब इसको थोड़ा सेपरेट करके लाते हैं, समझिए इसको। ये 4 मीटर, यहां पे जो 90 दिखाया हमने, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। हमने यहां पे कर दिया 3 मीटर, ए बी एंड सी। तो आपको ये समझना आसान होगा, ये 90 डिग्री है, ये इंक्लाइन नहीं है। तो इस केस में AC कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यू आर स्मार्ट एनफ, समझ जाएंगे सोल्व करने के बाद। 5 मीटर, ये हमारा 5 मीटर हो गया। ये हमारा हो गया कितना? 5 मीटर। 5 मीटर। अब ये जो है यहाँ पे 90 है, यहाँ भी 90 है, तो इसको हम अलग से यहाँ शो कर रहे हैं। सबसे पहले अब AB जो है, AC हमारा जो AC जो ये जो AC है, ये हमारा AC मान लिया A, और हमने ये दिखा दिया यहाँ पर अप है। तो अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने क्या किया, इसको AC को हमने एक लाइन पे ले लिया समझने के लिए। A, C। इस पर कितना है ये हमारा? D मान लीजिए। तो दिस इज द CD, ये CD हो गया और ये हमारा हो गया ये 5, ये अब ये हमारा AD। तो फाइनली AD कितना हो जाएगा? 90 डिग्री है। जब पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी रूट करेंगे एंड दैट इज द 5। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना। अब समझने के लिए समझिए, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिए 3D में। बेटा ये ईस्ट देखिए, ये हमारा देखिए, ये हम मेरे हाथ से, मैं अपने तरफ से हूं, जो मेरा बोर्ड हम जो फेस कर रहे हैं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है जो ईस्ट कहलाता है। तो ये 5 मीटर बॉडी ईस्ट। और उसके बाद ये नॉर्थ, कुछ भी देख लीजिए। ये पहले ये 4 है, ये 3 है। तो इस केस में जब 4 और 3 है, ये 4 और 3 है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये ट्रायंगल यहां बन गया, ये ट्रायंगल हमारा ये बन गया। अब ये है कि बॉडी जो है इससे ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये हुआ, ये यहां पर ये डायग्राम बन रहा है। अब इसको हटा दीजिए, अब ये इसके नॉर्मल है ऊपर। अब एक और ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल, और ये राइट ट्रायंगल जो है, इस राइट ट्रायंगल को हमने अब यहां से ऐसे बना दिया, हमारा एडी। तो हमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक XY प्लेन में, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल XY प्लेन में, और एक राइट एंगल ट्रायंगल YZ प्लेन में। तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं? तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा कितने हैं? XY प्लेन में बन रहा है। और ये किस में बना? YZ प्लेन में। तो होप और लॉग पैरेललोग्राम हर जगह यूज होगा, एवरीवेयर। और 12 कर चुके हैं आप या कर रहे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म में कई जगह इस्तेमाल होगा लॉग पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैं आज टॉपिक को खत्म करता हूँ। कल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद हम डिफरेंट नीट के लिए कुछ क्वेश्चंस और फिर आईटी के लिए कंप्लीटेड क्वेश्चन डालेंगे। तो वेक्टर में मुझे कम से कम 6-7 लेक्चर और चाहिए। आई विल टेक लॉन्ग टाइम इन द वेक्टर, एटलीस्ट 10 लेक्चर्स। Okay, students, have a good time.